صوبائی اسمبلی نے سندھ سول سرونٹ ایکٹ میں متفقہ طور پر ترمیم منظور کر لی۔ موٹر وہیکل ایکٹ میں ترمیم کا بل بھی پیش۔ سینئر صوبائی وزیر شاہجل انعام میمن کہتے ہیں پیپلز بس پر سفر کرنے والے 1,10,000 شہریوں کو حکومت روزانہ سبسڈی فراہم کر رہی ہے۔ 1,000 سے زائد ای وی بسیں اس سال لائی جا رہی ہیں۔ عاجز جمالی کی رپورٹ۔ سندھ اسمبلی کا اجلاس اسپیکر اویس قادر شاہ کی زیر صدارت ہوا۔ وقفہ سوالات کے دوران وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن نے مختلف ارکان کے سوالات کے جواب میں کہا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے سندھ کو جدید ٹرانسپورٹ دی ہے۔ پیپلز بس سروس پر 1,10,000 اور گرین لائن پر 74,000 مسافر روزانہ سفر کرتے ہیں۔ سندھ حکومت روزانہ شہریوں کو سبسڈی فراہم کرتی ہے۔ شہر میں مزید ای وی بسیں لا رہے ہیں۔ رواں ماہ خواتین کو مفت ای وی موٹر سائیکلیں فراہم کریں گے۔ 1,10,000 پیسنجرز جو ہیں وہ پیپلز بس سروس روزانہ کی بنیاد پر پیسنجرز کو جو ہے وہ اس پہ سفر کر رہے ہیں اور وہ سبسڈائز ریٹس پہ سفر کر رہے ہیں۔ 1,10,000 جو پیسنجرز ہیں ان کو سبسڈی بھی روزانہ کی بنیاد پر حکومت سندھ ان کے بیاف پہ سبسڈی پے کر رہی ہے کہ وہ ایئر کنڈیشنر میں بیٹھ کر جو ہے گاڑی میں وہ اپنے کام پہ جائیں، روزگار کے لیے جائیں، اپنی مصروفیات کے لیے جائیں۔ تو یہ ہے میرا جواب۔ وزیر قانون ضیاء الحسن لنجار نے ایوان میں سندھ سرونٹس ایکٹ میں ترمیمی بل پیش کیا، جس کے تحت سرکاری ملازم 25 سال کی ملازمت یا 55 سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ حاصل کر سکے گا۔ ڈبل پینشن کا بھی خاتمہ ہوگا۔ بل متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ وزیر قانون نے سندھ موٹر وہیکل ترمیمی بل بھی پیش کیا۔ 2025 چل رہا ہے، 73 50 سال پرانا یہ ایکٹ ہے، تو اس لیے ٹائم ٹو ٹائم کافی چیزیں اس میں امینڈ ہوئی ہیں، لیکن اب ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ امینڈمنٹس لائیں تاکہ بیٹرمنٹ آف دا گورننس اس کو ہم امپوز کریں۔ کیپ کے تحت کالجز میں داخلوں کے توجہ دلاؤ نوٹس کا جواب دیتے ہوئے وزیر تعلیم سردار شاہ نے کہا کہ اب تک 1,08,000 سے زائد طلبہ نے داخلے کی درخواستیں دی ہیں۔ یہ سلسلہ جاری ہے۔ 63,562 جو ایڈمیشن کنفرمڈ ہو چکی ہیں، باقی جو ہماری 44,926 ایڈمیشنز ہیں وہ ابھی پروسیس پہ ہیں۔ جب یہ کلوز کریں گے تو فائنل کر کے ان کا ڈکلیریشن ہوگا۔ امید یہ ہے کہ اس سال ایڈمیشن جو ہے کچھ زیادہ بچے آ رہے ہیں۔ اسپیکر اویس قادر شاہ نے سندھ اسمبلی کا اجلاس پیر کو 1:30 بجے تک ملتوی کر دیا۔ کیمرامین محمد حارث کے ساتھ عاجز جمالی، سٹی 21۔ شہر کے مختلف علاقوں میں پانی کی قلت سنگین صورت اختیار کر گئی۔ کورنگی سیکٹر 5 میں پانی نایاب ہو چکا، جبکہ لانڈھی نمبر 4 کے مکین بھی پانی کی قلت کے باعث مشکلات کا شکار ہیں۔ رہائشیوں نے حکومت سے پانی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ پانی کی قلت نے شہریوں کو ذہنی اذیت میں مبتلا کر دیا۔ کورنگی سیکٹر 5 میں سالوں سے پانی کی فراہمی بند، لانڈھی کے مکین بھی بوند بوند کو ترس گئے۔ کورنگی سیکٹر 5 کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ مہنگے داموں ٹینکر کا پانی خریدیں یا بچوں کا پیٹ پالیں۔ کئی بار واٹر بورڈ اور ضلع انتظامیہ کو شکایت دی مگر کوئی سنوائی نہیں ہوتی۔ بورنگیں کرائی ہوئی ہیں گی یا پھر خریدتے ہیں پانی، اپنے مسئلے اسی طرح سے حل کرتے ہیں، ٹینکر منگا لیتے ہیں، ٹنکیاں منگا لیتے ہیں، کیا کریں۔ لانڈھی نمبر 4 کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ ہر 2 دن بعد مہنگے داموں ٹینکر خریدنا پڑتا ہے، جو اب غریب آدمی کے بس سے باہر ہو گیا ہے۔ پانی کے حوالے سے ہمارا علاقہ اتنا پریشان ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ مجبوری طور پر یہ فلٹر والا پانی خریدنا پڑتا ہے، فلٹر والا پانی خرید کر لے کر آتے ہیں۔ فلٹر میں مطلب پانی آ رہا ہے، ادھر علاقے کی لائنوں میں پانی نہیں آ رہا۔ پانی جیسی بنیادی سہولت کی عدم دستیابی کراچی جیسے میگا سٹی کے لیے رمحِ فکریہ ہے۔ شہریوں کا مطالبہ ہے کہ پانی کی فراہمی فوری طور پر بحال کی جائے تاکہ وہ سکون سے زندگی گزار سکیں۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر اقصیٰ شیخ کے ساتھ محمد حماد، سٹی 21۔ عوام کے لیے خوشخبری لیکن ساتھ ہی معمولی بوجھ بھی۔ حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں واضح کمی کر دی اور ڈیزل کی قیمت میں معمولی اضافہ کر دیا۔ نئی قیمتوں کا اطلاق فوری طور پر نافذ کر دیا گیا۔ وسیم افتخار کی رپورٹ۔
आवाम के लिए रिलीफ और बोझ एक साथ। पेट्रोल सस्ता होने पर आवाम खुश, मगर डीजल की कीमत में इजाफे ने उलझन पैदा कर दी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में 7 रुपए 54 पैसे की नुमाया कमी कर दी गई है, जिसके बाद नई कीमत 264 रुपए 61 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। दूसरी जानिब हाई स्पीड डीजल 1 रुपए 48 पैसे महंगा कर दिया गया और अब उसकी नई कीमत 285 रुपए 83 पैसे फी लीटर मुकर्रर है। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल सस्ता करना खुश आइंद फैसला है, मगर महंगाई के इस दौर में कीमत मजीद कम करने की जरूरत है। डीजल भी सस्ता करना चाहिए इन्हें, क्योंकि डीजल भी महंगा ही है, और पेट्रोल तो और सस्ता करना चाहिए कि रोज़मर्रा का आना जाना है सबका। ये इसको और सस्ता करना चाहिए, आवाम को बहुत तकलीफ है। और हाँ, सस्ता होना चाहिए सर, आजकल महंगाई बहुत है, आपको पता है, गरीब आदमी क्या करेगा सर। वजारत खजाना ने कीमत में तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और मुल्क भर में नई कीमतों पर पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त शुरू हो चुकी है। एक्सपो सेंटर कराची में 3 रोज़ा माय कराची एक्सपो का शानदार आगाज। 20वें एडिशन के पहले रोज सुहेल यूनिवर्सिटी की जानिब से स्टॉल सज गया। ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए ऑर्गेनिक टी समेत मुख्तलिफ अशिया लॉन्च कर दी गई। रिमशा इस्माइल की रिपोर्ट। एक्सपो सेंटर कराची में माई कराची नुमाइश शुरू। 20वें एडिशन के पहले रोज 300 से जायद स्टॉल सज गए। अद्वियात, मसालाजात, कपड़ों के ब्रांड समेत मुतादिद स्टॉल्स पर शहरियों का रश। सुहेल यूनिवर्सिटी के तलबा ने अपनी तहकीक और तख्लीकी सलाहियतों से मुनफरिद ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पेश कर दिए। तलबा ने मॉस्किटो रिपेल बाम, दिल के अमराज और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने के लिए टी बनाकर सबको हैरान कर दिया। ये मॉस्किटो रिपेलेंट बाम है। ये नॉर्मल जो आपका मॉस्किटो रिपेलेंट्स मिलते हैं मार्केट में उससे डिफरेंट है, बाम के फॉर्म में है, तो हेंस ये ज़्यादा स्प्रेड नहीं होता। जैसे मॉस्किटो वगैरह आप लगाते हैं तो वो ड्रिप हो जाता है। और इसका दूसरा एडवांटेज है 100% ऑर्गेनिक है, इसके कोई भी DET वगैरह कुछ भी नहीं है। तो ये एक तो 100% ऑर्गेनिक है और DET फ्री है, तो ये आपकी स्किन को कोई अफेक्ट नहीं करता। DET फ्री मतलब जो दूसरे हमारे पास मॉस्किटो वगैरह होते हैं वो DET फ्री नहीं होते, उसमें DET यूज हो रहा होता है, तो वो केमिकल्स यूज हो रहे होते हैं जो आपकी स्किन को इरिटेशन कॉज करता है। लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है वो 100% ऑर्गेनिक है। DET बेसिकली डाइथाइल मेटाटोलोमाइड है, ठीक है। हमने उसमें DET नहीं रखा क्योंकि वो इरिटेशन कॉज करता है, बच्चों के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है। लेकिन हमारा प्रोडक्ट जब आप यूज करेंगी तो ये मतलब एक इफेक्ट आपको नजर आएगा, विजिबल इफेक्ट। प्रोजेक्ट मैनेजर डॉक्टर अस्मा कहती हैं, एक्सपो में सुहेल यूनिवर्सिटी की जानिब से 11 प्रोजेक्ट पेश किए गए हैं, जिनमें फार्मेसी, फिजियोथेरेपी और NIT साइंस डिपार्टमेंट के तलबा ने हिस्सा लिया है। 11 प्रोजेक्ट्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी, सुहेल यूनिवर्सिटी से यहाँ बच्चों ने डिस्प्ले किए। हमारे DPT डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल थेरेपी, फार्मेसी डिपार्टमेंट और मैनेजमेंट NIT साइंसेस से हमारे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है। माई कराची एक्सपो में सुहेल यूनिवर्सिटी के तलबा की काविशें न सिर्फ तालीमी मेयार की अक्कास है, बल्कि ये पैगाम भी दे रही हैं कि पाकिस्तान का नया टैलेंट अपने तहकीक और मेहनत से मुआशरे की भलाई के लिए मुतहरिक है। कैमरामैन जनान शीपा के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। डीजल की कीमत में 1.5 रुपए फी लीटर इजाफे पर गुड्स कैरियर एसोसिएशन का रद्द अमल। सीनियर नायब सदर सफीर शाहीन ने कहा है कि हुकूमत पेट्रोलियम कीमतें बढ़ाकर अवाम और ट्रांसपोर्टर्स के साथ मजाक कर रही है। रुकन राना तारिक के मुताबिक किरायों और महंगाई में इजाफा होगा, जबकि तरसीली अखराजात भी बढ़ेंगे। काविश मेमन की रिपोर्ट। मुल्क में पेट्रोल सस्ता लेकिन डीजल महंगा। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपए 48 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। डीजल की कीमत में इजाफे पर गुड्स कैरियर एसोसिएशन का रद्द अमल। सीनियर नायब सदर सफीर शाहीन ने कहा है कि हुकूमत मुसलसल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाकर अवाम और ट्रांसपोर्टर्स के साथ मजाक कर रही है। बड़ी अजीब सूरत हाल है, गवर्नमेंट बिल्कुल मजाक कर रही है हमारे साथ। पहले 11 रुपये एक दफ़ा बढ़ाया, 10 रुपये 36 पैसे एक दफ़ा बढ़ाया और अब फिर उन्होंने 1.5 रुपये बढ़ा दिया। वो कोई ये इतनी बड़ी रकम लगती नहीं है, लेकिन ये मसलसल तीसरी दफ़ा, यानी कि ये तो टोटली तकरीबन कुछ 40-42 रुपये का फ़र्क आया है। एसोसिएशन के रुकन राना तारिक ने कहा कि डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्ट की किरायों में इजाफा होगा, जिससे महंगाई मजीद बढ़ेगी। जैसे ही डीजल महंगा होगा तो महंगाई बढ़ेगी। अब हुकूमत को अपनी पॉलिसियों पे गौर करना चाहिए। डीजल बढ़ता है तो उसका फौरी तौर पे महंगाई के ऊपर असर पड़ता है। जैसे कि आज डीजल बढ़ा है, आज ही हमारी गाड़ियां 5 से 10 हज़ार रुपये महंगी लगेंगी। तो जब महंगी गाड़ियां लगेंगी, हमारे यहाँ से देखें, चावल से लेकर, दालों से लेकर, दवाइयों से लेकर, सब्जियों से लेकर हर चीज़ का अमल दखल डीजल के ऊपर है। हुकूमत को मेरा नहीं ख्याल कि डीजल को बढ़ाकर अवाम का खून चूसना चाहिए। गुड्स कैरियर एसोसिएशन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि कीमतों में मजीद इजाफे से गुरेज किया जाए, ताकि अवाम और कारोबारी तबके को मजीद मुश्किलात का सामना न हो। कैमरामैन सज्जाद के साथ काविश मेमन, सिटी 21। जश्न आज़ादी मार्का हक। शहर कायद में जश्न आज़ादी की सरगर्मियों का आगाज। वाइस चांसलर दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की क़यादत में असातिज़ा की वज़ार कायद हाज़री और फातह ख़्वानी।
शुरका ने कहा कि पाकिस्तान एक अजीम नेमत है, मार्का हक की कामयाबी पर कौम को फख्र है। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट। अजीम कुर्बानी का अजीम समर, अर्ज़ पाकिस्तान की जिद्दोजहद में कुर्बानियाँ देने वालों को खिराज अकीदत। जश्न आज़ादी मार्काए हक, 400 जश्न का समा। वाइस चांसलर दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर समरीन हुसैन की क़यादत में असातिज़ा और तलबा की मज़ार कायद पर हाज़िरी। शुरका ने मज़ार पर फूल चढ़ाए, फातिहा ख्वानी, मुल्क की सलामती के लिए दुआ मांगी। वाइस चांसलर डॉक्टर समरीन हुसैन ने कहा कि जश्न आज़ादी के पहले रोज़ सबसे पहले बानी पाकिस्तान को खिराज अकीदत पेश किया। मार्का हक के बाद योम आज़ादी पर कौम का जज्बा 1947 जैसा और 500% ज़्यादा है। सबसे पहले तो 5% नहीं 50% या शायद 500% इसको इस तरह कर लेते हैं, बिकॉज मार्का हक की कामयाबी के बाद जो दोबारा से एक नेशन जेलन हुई है आपस में, आई थिंक ये सेम वही स्पिरिट है जो 47 में स्पिरिट रही होगी। तो वी आर लकी टू हैव दैट स्पिरिट अगेन, और बड़ी रिक्वायर्ड भी थी। और उसको सेलिब्रेट करने के लिए अगर अब हम 1 से लेकर 14 तक एक सीरीज ऑफ इवेंट कर रहे हैं, जिसमें दाऊद यूनिवर्सिटी का ये एक बेसिक क्रैक्स है कि हमने इंक्लूसिविटी एंड डाइवर्सिटी को हाईलाइट करना है। इस मौके पर असातिज़ा ने कहा कि मुल्क पाकिस्तान एक अजीम नेमत है, मार्का हक की कामयाबी पर कौम को फख्र है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के इस इनिशिएटिव को हम अप्रिशिएट करते हैं, और उसी सिलसिले में आज हमारी यूनिवर्सिटी अपने वाइस चांसलर के हमरा फाउंडर ऑफ द नेशन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पास हाजिर हुए थे, और इंशाल्लाह इसको 14 दिन हम इसी जोश और जज्बे के साथ कंटिन्यू करेंगे। 1 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक जो ना सेलिब्रेशंस करनी है, तो उससे आज 1 अगस्त है, तो हमने यहाँ से मज़ार कायद से स्टार्ट किया है। ठीक है, यहाँ पे हम आए, खिराज अकीदत पेश किया है इनको। कौमी परचम हाथ में थामे असातिज़ा का जज्बा बीतनी दिखाई दिया, जबकि पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारों की गूंज रही। जश्न आज़ादी के सिलसिले में यूनिवर्सिटी में 14 अगस्त तक सरगर्मियां जारी रहेंगी। कैमरामैन इमरान अहमद खान के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। न्यू कराची प्लास्टिक के गोदाम में आते सदकी 7 घंटों की जदोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इमदादी कार्रवाइयों में 2 स्नॉर्कल समेत फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। आग लगने के बायस करोड़ों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। मुबशिर हुसैन की रिपोर्ट। कराची में फिर आग। न्यू कराची सबा सिनेमा के करीब प्लास्टिक के गोदाम में आतिशबाजी की। देखते ही देखते आग ने पूरे गोदाम को लपेट में ले लिया। आग की इत्ला पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों समेत रेस्क्यू टीमें पहुंच गईं और इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। स्नार्कल और 15 गाड़ियों की मदद से 7 घंटों की जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। हर वक्त कार्रवाई करके केएमसी फायर ब्रिगेड में और तमाम इदारों ने और क्यों नकाटी के लोग हमारे साथ थे, और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी कोऑर्डिनेशन से बर वक्त कार्रवाई करके आसपास की तमाम फैक्ट्रियों को बचा लिया गया, क्योंकि प्लास्टिक का काम आसपास भी होता है, उसको बचा लिया गया और आग को वहीं तक रखा जहाँ पे आग लगी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह 80% आग बुझ चुकी है और थोड़ी बहुत आग बाकी है, जिसको इंशाल्लाह 1-8 घंटे में कवर कर लेंगे। आग लगने के बायस करोड़ों रुपए का सामान जल कर राख हो गया। चेयरमैन न्यू कराची इंडस्ट्रीज के मुताबिक रेस्क्यू ने बरवक्त रिस्पॉन्स दिया, जिसकी बदौलत तीसरे दर्जे की आग पर तवील जिद्दोजहद के बाद काबू पा लिया गया और खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान भी नहीं हुआ। ये प्लास्टिक इंडस्ट्री थी बेसिकली 12C सेक्टर नॉर्थ कराची में, और प्लास्टिक एसेसरीज बनाते थे। ये जो टॉयलेट एसेसरीज होते हैं इसका काम करते थे। प्लास्टिक एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, इसके आग जो है वो बड़ी तेज़ी से भड़कती है। तो ये जो मामलात थे, इस वजह से आग की नौयत जो है वो खतरे में थी, लेकिन फौरी तौर पे हमारे डीएमसी की टीम ने और सीएमसी की टीम ने रिस्पॉन्ड करते हुए इस फैक्ट्री को खाली कराया। आतिशबाजी की इत्ला पर पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की टीमें भी मौजूद रहीं। हुक्काम का कहना है कि इब्तिदाई तौर पर आग लगने की वजह का तयन नहीं हो सका। कैमरामैन झांझेब के साथ मुबशिर हुसैन, सिटी 21। और कारोबारी हवाले से खबर यह है कि अमरीकी मुआहदे का असर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स बुलंद तरीन सतह 1,41,160 पर जा पहुंचा। काविश मेमन की रिपोर्ट। पाक अमेरिका तिजारती मुआहदे के सम्राट। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स नई बुलंद तरीन सतह पार कर गया। स्टॉक माहिरीन में तारीख रकम
पहली बार इंडेक्स 1,41,000 की सतह छू गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का इख्तिताम बुलंद तरीन सतह पर हुआ। 100 इंडेक्स 1,644 पॉइंट्स का नुमाया इजाफा देखने में आया। स्टॉक माहिरीन के मुताबिक अमेरिका के साथ तिजारती मुआहदे के बाद सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ और वो भरपूर अंदाज में मार्केट में मुतहर्रिक नजर आ रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, आज जो है मार्केट फिर जुलाई का महीना जैसा आपने कहा लकी रहा और उसके साथ अगस्त के आगाज में ही मार्केट ने जो है वो ऑल टाइम हाई टच भी किया 1,41,000 और उसको मेंटेन भी किया। इसकी जो दो बुनियादी वजह है जो है यूएस टैरिफ पे जो पाकिस्तान को 19% जो लगा है, तो इससे जो है पाकिस्तान को जो एक्सपोर्ट करने में बहुत ही ज्यादा सपोर्ट हासिल होगा। अगर हम देखें जहाँ ट्रेड डील के हवाले से पूरी दुनिया एक जो परेशानी में थी अमेरिका के साथ, वहाँ इस गवर्नमेंट ने अपने जो मौसर जामा पॉलिसीज जो बताई थी उसके बाद एक डील फाइनलाइज हुई है और 19% के ऊपर अमेरिका के साथ जो है ट्रेड डील हुई है। अमेरिका के साथ तिजारती मुआहदे ने स्टॉक मार्केट में नई जान डाल दी। सरमायाकारों के एतमाद में इजाफे और कारोबारी सरगर्मियों में तेजी रिकॉर्ड की गई। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ काविश मेमन, सिटी 21। FBR के बेनामी जोन ने गाड़ियों के इंपोर्ट में अरबों रुपए की मुबैना बेनामी ट्रांजैक्शन की इंक्वायरी शुरू कर दी। VBNG स्कीम के गलत इस्तेमाल पर क्लियरिंग एजेंट्स को नोटिस जारी करते हुए 7 दिन में वजाहत तलब कर ली। अशरफ खान की रिपोर्ट। गाड़ियों की दरामद में अरबों रुपए बेनामी ट्रांजैक्शन। FBI ने शिकंजा मजीद सख्त कर दिया। FBI ने पुरानी गाड़ियों के इंपोर्टर्स और क्लियरिंग एजेंट्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। एंटी बेनामी जोन ने 2018 से 2025 तक गाड़ियों की दरामद का रिकॉर्ड तलब कर लिया। अरबों रुपए के टैक्स चोरी और VBNG स्कीम के तहत गलत इस्तेमाल के इल्जामात पर क्लियरिंग एजेंट को 7 रोज में वजाहत देने की हिदायत कर दी और अदम ताउन की सूरत में फौजदारी कार्रवाई का अंदिया दे दिया। FBI ने एजेंट से मुकम्मल दरामदी रिकॉर्ड, मालिकान की तफसीलात और बैंक स्टेटमेंट भी तलब कर ली हैं। ऑल पाकिस्तान कस्टम क्लियरिंग एजेंट एसोसिएशन ने तहकीकात में मुकम्मल ताउन का ऐलान किया है, जबकि जाली प्रोसीड, रियलाइजेशन सर्टिफिकेट और बैंकों की मिली भगत से फ्रॉड के इंकशाफ भी सामने आए हैं। अशरफ खान, सिटी 21। अमेरिका पाकिस्तान के साथ तेल गैस में सरमायाकारी करने के लिए पुरअज़्म है। एडवाइज़र मुशीर ख़जाना खुर्रम शहजाद कहते हैं पाकिस्तान में महंगाई की शरह में कमी हुई है। मुल्क की मईशत माजी में बंद गली में चली गई थी। मोहम्मद खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट। अमेरिका पाकिस्तान तिजारती दौर का आगाज, मुल्क की इस्तेहकाम और माशी मजबूती का तसलसल, महंगाई की शरह में कमी, मुल्क तरक्की की जानिब गामजन। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंट ऑफ पाकिस्तान की हालिया बजट पर जायजे से मुतालिक किताब की तकरीब रोनुमाई। तकरीब से खिताब में वफाकी मुशीर खजाना खुर्रम शहजाद ने कहा कि मुल्क माशी तरक्की की जानिब गामजन है, महंगाई की शरह कम हो रही है। एक तो महंगाई की शरह में ठहरा हुआ है। 2 साल में महंगाई 50% बढ़ी, 23%, 30% ऐसे ही है ना जी। मई 2023 में हाईएस्ट शरह थी महंगाई की 38%। सबसे बड़ी चीज़ महंगाई है ना, उसके बाद अर्निंग पावर्स है। खुर्रम शहजाद ने कहा कि अमेरिका का पाकिस्तान के साथ तिजारत करना बड़ी अहमियत का हामिल समझा जा रहा है। हालिया बजट में सैलरी क्लास को रिलीफ नहीं दे सके, लेकिन इसको प्लान कर रहे हैं। ICMA के डायरेक्टर आमिर एजाज खान ने कहा मुल्क भर में मुख्तलिफ इदारों से मुस्तनद अफराद मुल्क की खिदमत में मसरूफ हैं। हम अपनी बजट तजावीज़ FBR को पेश करते हैं। हमने सबसे पहले ये जो इनिशिएट किया था उसको ICMA बजट पॉलिसी रिकमेंडेशन का नाम दिया गया था। जनवरी में हमने अपनी ये तमाम रिकमेंडेशन FBR को दी थी। तकरीब में अकाउंटेंट और तालिब इल्मों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और मुशीर खजाना के साथ सवालात का सेशन हुआ, जिसमें मुशीर खजाना खुर्रम शहजाद ने तसल्ली बख्श जवाब देकर शुरका को मुतमईन किया। कैमरामैन रमीज अली के साथ खुर्शीद रहमानी, सिटी 21।